अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾਲ ਤਾਹਿਰ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਾਹਵਾ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹੀ ਆਖੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੰਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਤੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਛਾਨਣੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮਕਬੂਲ ਗੱਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਛੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਾਕਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹ ਗੱਡੀ ਯਾਨੀ ਮੁਰਾਦ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਘੋੜਾ ਗਾੜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉਹ ਰਸੀਦ ਪਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘੋੜਾ ਪੈੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਂਗਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਸ਼ੰਗ ਵੀ ਐਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੰਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਂਗਾ ਘੋੜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹਾਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਜਤਮਾਹੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਐਸੇ ਜ਼ਰਾਏ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਤਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮੋਜਜ਼ ਨੁਮਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਖਰजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरजुल मय्यत मिनल हय्य, ਕਿ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਕਤ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣਾ ਚੋਖਾ ਗੁੰਨ ਛੱਡਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਆਖਣਾ ਕੁਛ ਚੱਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਮੌਲਮ ਵੀ ਸਨ, ਵਕਫੇ ਜਦੀਦ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆਖਿਆ ਵੇ ਆਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਕਰ, ਪੂਰਾ ਗੁੰਨਿਆ ਕਰ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਚੋਖਾ ਹੀ ਗੁੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖ ਕੇ ਥੱਕ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਟਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਚੋਖਾ ਵੀ ਗੁੰਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਕੇ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੁਚੱਜ ਅਤੇ ਚੱਜ ਉਹ ਸੁਚੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਜੇ ਅਗਰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਸ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕਹਿਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਲੀਫਤੁਲ ਮਸੀਹ ਸਾਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਹੈ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਮਕਈ ਦਾ ਆਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਲਿਸ ਨੇ ਆਲੂ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ
कि वह ऐड करके तो वो भी कमी निशास्ते की और ग़िज़ा की पूरी हो जाती है। बहरहाल औखा वक्त सी ओवरऑल बंदियां जिन्हें साँभ के भी रखी सी, वो भी किन्ने चिर कढ़दी। ये वक्त जो आना सी उस तो 1-2 साल पहला यानी जोड़ा साडा बज़ाहिर जिमींदारा बैकग्राउंड सी तो वो साडी जिहड़ी न्याई सी एक किला उहदे विच पता नहीं इन्हों की ख्याल आया दादकियां साडियां नूं उन्हां उहदे च चक्की ते मुंजी वाली मशीन ते वो जब मीटर मंजूर करवा के बिजली दा ते शायद वो बिजली नवीं नवीं आई किसी भी वजह तो इन्होंने वो ला ली। हुण इन्हां दी अम्मी साडी नूंह सन। अच्छा जेड़े वेले वो लग गई तो अगों मतलब वो चलन लग पई। उहदे च एक तरीका हुंदा शायद सारियां नूं पता होवे, एक जिहड़ी वो पिसाई ते पैसे देने हुंदे ने ते दूसरा उहदे चों काट देनी हुंदी उन्होंने, यानी हर मन दे विचों किलो 1.5 किलो की काट भी हुंदी आटे की। वो मैं भी वो निक्के हुंदियां वेखिया सी, चक्की दे अंदर जाई ते एक वड्डा सारा ड्रम पिया हुंदा सी, वो जिहड़े तोलदे पे हुंदे सन कंडे ते वो काट उहदे चों पूरी करके ते फिर उस दे बाद वो देईदे सी। चनाचे वो ड्रम तो काट वाला ड्रम तो हर वेले भरिया रहिंदा सी, क्योंकि उसकी वजह है कि चक्की वाले तो कल्ला एक घर है तो आना उत्थे कई पिंडां चों आउणी हुंदी कणक। सानूं याद है कि नाल दे पिंडां च भी उस वेले बिजली कोई नहीं सी तो उत्थे ही आउंदे हुंदे सन, वो खोते ते लद के घुमियारां लैके आउणी करनी ते वो ड्रम भरिया ही रहिंदा सी। हुण जिन्हां दा चक्की है जिन्हां दा ड्रम है वो तो आटा उन्हां ने उत्थों ही लिजाणा, मतलब वो अपनी कणक ना भी भ्याण तो उन्हां दा तो ड्रम हर वक्त मौजूद है ना। चुनाचे वो जिन्होंने दिनों कैद की सूरत बनी तो उदों साढ़े नाना जी भी किसी वजह पिंड आए होने साढ़े या किसी दौरे ते या किसी। बहरहाल वो आके रुके, प्योवां नूं एहसास हुंदा भी साडी धीआं हल की पोजीशन होवे ते इन्हां आख्या भी कणक दा, उन्हें आख्या जी कणक तो है भी ये तो कुछ ना कुछ गुजारा ठीक है, शुक्र है अलहमदुलिल्लाह, लेकिन सानू तो महसूस इस वास्ते नहीं होया कि वो जिहड़ी कणक आउणी वो पीसनी तो इत्थे ही हुंदी है, लिहाजा वो काट वाला ड्रम जिहड़ा उन्हें तो खाली होना कोई नहीं। वो फिर नाना जी साडे जिहड़े ने उन्हें आख्या लो जी वो ये बचपन च तुहाडी मां दे जिहड़े ना मैं दुआ कीती सी बई यार अल्लाह मैं तो अपनी ड्यूटी के सिलसिले च कभी किसी शहर च कभी कितने होना, मैं इनू किन्ना समझा सिखा सकना, बस तू इनू आटा इन्ना दित्ती रखिए मुके ना दे लो। चनाचे वो मौका ऐसा सी, यानी जाहिर हो कह तो साडे बचपन की गल है, उसके बाद दोबारा ना वेख्या ना सुनिया। अल्लाह ताला आइंदा भी बचाए इंसानों नूं। इस तरह की जिहड़ी आफात ने वो कोई सहनियां सौखियां नहीं होंदियां, फिर बंदे जिहड़े ने वो दरख्तां दे पत्ते ते छिल्लां खानियां पैंदियां ने, लिहाजा अल्लाह ताला बार उस वक्त तो बचाए। लेकिन जदों वो एक थोड़ा जिहा झलक या रंग आया उदों वो बंदा जिन्हें अपनी प्रोफैशनलिज्म ते अपनी तरबियत ते अपना धक्का और अपनी ताकत और अपनी हैसियत वो सारी नू सरेंडर करके ते अल्लाह ताला दे फजल नू जज़ब करने वास्ते आके भी अल्लाह मेरे को तू इनू आटा ही चोखा दे छड़ी। अल्लाह ताला ने अपना वक्त जदों आया वो इस रंग जाहिर कर लिया। ये जिहड़ी ज़ातियात चो गल चुकी अपने घरों गल सुनी किते बचपन की, वो अज क्यों दसी, उसकी वजह ये वे कि जिहड़े वेले तुहानू सोशल ते पोलीटिकल सिस्टम विचों आउट किया गया सी, उहदा एक ही तरीका सी, दूजा तो यानी बज़ाहिर जिहड़ा दुनियादारां वाला वो तो यही सी ना, बस उस वेले जलूस निकल पैंदे ते जनाब अग्गां लग जांदियां साडे ऐसी दी तैसी और तुसां साडे खिलाफ कह कीता। लेकिन पिछे जिहड़े वजूद सन वो इज़्ज़त जिल्लत हक हकूक और नवाजना या महरूम रहना, इन्हां सारियां चीज़ां दा मबदा और इहदा सोर्स सरचश्मा वो चूँकि अल्लाह ताला दी ज़ात नूं समझते हैं और अज भी समझते हैं, उदों भी समझते सन। लिहाजा अल्लाह ताला दे उन्हां कायम किए हुए बाबरकत वजूदां दी जिहड़ी लड़ी अल्लाह ताला ने खिलाफत की सूरत च दी सी, उस खिलाफत का उस जमाने च फैसला सी कि ठीक है तुहाडे चेहरिਆਂ तो मुस्कुराहट जिहड़ी है ना वो नहीं ख़त्म होनी चाहिए। और फिर इत्थों तक भी है तो वो शायद किसी इनफरादी होवे कॉन्टैक्सट, लेकिन इजतमाही भी वो दैट इज़ इक्वली एप्लीकेबल। तो हज़रत खलीफा सालिस ने उस ज़माने फरमाया और वो कोटेशन असा किसी न किसी जगह लिखी हुई है, दीवार पर लगी हुई मैं पढ़ी है कि कभी भी मालो दौलत की खातिर एक दूसरे से मत लड़ो और बाहमी इख्तलाफात दूर करने के लिए जहाँ तक हो सके अपने हुकूक तक छोड़ दो, क्योंकि देने वाला तो खुदा है। जब वो देने पे आता है तो इतना देता है कि इंसान की झोली में समा नहीं सकता।
मैं उर्दू की कोटेशन हाफजे की मदद नाल कोई अल्फाज का अग्गा पिछा हो सकता, लेकिन मफहूम एग्जैक्टली यही है। चुनाचे जिन्होंने आम आदमी की तरबीयत इस दुध के उत्ते कीती होवे, तवक्कुल के उत्ते, और खुदा ताला नू फैज़ रसानी का इब्तदाई और आखिरी, अव्वल व आखिर फैज़ और मफादात और हुकूक का सरचश्मा रखिया ही अल्लाह ताला की ज़ात नू होवे। क्यों ज़मीन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर आसमान से तुम्हारा पुख्ता ताल्लुक हो। उन्होंने क्या जुलूस कढ़ाने सन, वो चुप करके पासे तो हो गए। लेकिन जदों अगे जाके वक्त गुजरता गया, एक वक्त ऐसा आया जिस वेले वो साकिब ज़ीरवी साहब ने आख्या ना कि ताकत के नशे में चूर थे जो तौफीक नज़र जिनको न मिली, मफहूम न समझे वो नादां कुदरत के लिखे फरमानों का। तो मफहूम वो नादान आज तक कोई ना समझे, लेकिन वो जिहड़ी मार पैनी सी उस सारे हकूक दी, वो शुरू तो हुई सी सियासी हकूक तो, लेकिन उसका क्लाइमैक्स जाके आना सी मुआशी तंगी ते। इस वक्त जिहड़े रोज़ फॉलो करते पे ने मुख्तलिफ चैनल्स नू साडे दोस्त नाजरीन चों, उन्होंने पता है कि जिन्नी आईनी बहरान की गल की जाती है, सियासी बहरान की गल की जाती है, एक नू कढ़ के दूजे नू लियाउण वाली की जाती है, एस्टैबलिशमेंट नू चोखे अलले तरले और खर्चे करन दे ताने दिते जाते हैं, अदलिया दे, सुप्रीम कोर्ट दे, हाई कोर्ट दे जजां दी तनख्वाहां दे लिस्टां बन के तो उन्होंने बैनीफिट्स ते पेट्रोल ते जनरेटरां दियां ते कारां दे फ्री पेट्रोल दियां लिस्टां जिहड़ियां ने सोशल मीडिया ते पईयां छपदियां ने। क्यों पईयां छपदियां ने, की मुसीबत की पई ने? आखिर ये तो नहीं है भी कल जो पेट्रोल की कीमत वधी है तो उस तो बाद जजां की तनख्वाह इन्नी हुई है। जजां की तनख्वाह तो शुरू तो ही इंजी पे चलती होंदी सी। जरनैलों की या उन्होंने जिहड़े बैनीफिट्स और उन्होंने कारां या उन्होंने खर्चे ने वो भी उंज ही ने, दिफाई अखराजात भी उंज ही पे होंदे सन। पिछले 6 हफ्ते या 3 महीनों के विच नवे किहड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लए ने पाकिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान की फौज ने या अदलिया ने? रहा सवाल वजीर आजम वाला, तो जिमें तो जो जो चाटी पिंड उंजे तो अगला पिंड, इन्होंने तिना का मूल इको जिहा ही है। जिन्हों मर्जी लुका के दूजे नूं अगे कढ़ लो, मतलब इको जे बेईमान ने। जरदारी नूं जरदारी सियासत और इकतदार ने बनाया, नवाज शरीफ होरां नूं नवाज शरीफ और शरीफ फैमिली मियाँ साहिबान ते अरबां रुपया दे मतलब डिफाल्टर वो सियासत दे जो ही होए। अगर अपना काम करते होंदे या अपने कारोबार करते पे होंदे, उन्हां दे नाल होर किन्ने बंदियां दीयां मिलां सन, होर किन्ने बंदियां दे कारखाने सन, सारे कारोबारी हजरात है सन, उन्हां चों किन्ने कुन्ने जिहड़े इन्ने डिफाल्टर होए ने। किसी तो चपड़ासिया ने इन्ने पैसों की ट्रांजैक्शनस नहीं कीतियां। इस वास्ते ये और पिछे यह जो होना है तोशेखाने वाला तो आके तो होना ओदा तर्जमा ही है, यानी वो आंदा है कि अगर फौज मेरे नाल होवे तो सारा कुछ इंज ही पे होंदा होवे तां भी वो ठीक है, तो जे फौज मेरे नाल नहीं और मैनू वजीर आजम नहीं रखते फिर ये सारा मुल्क भी जाता है। फिर वो आंदा जी फौज भी तबाह हो जाएगी, फिर वो आंदा तुहाडा एटमी बंब भी जो भी बर्बाद हो जाएगा, फिर वो आंदा मुल्क के भी 3 टुकड़े होंगे, 3 टुकड़ियों के पिछे भी एक असल च साइंस है। एवें नहीं उस 3 टुकड़े आखे। इन्हां दी जेड़े वेले रस्से खिंचते हैं ना बह के एक दूजे नाल, तो बेसिकली तो शतरंज पे खेडते होंदे ने अपने अपने इकतदार दी। मोए इन्हां चों तुहाडे हकूक या आम पब्लिक वास्ते इन्हां दे पब्लिक दे मरने इन्हां चों किन्ने मरने ने, क्यों मरने ने? जिस वेले ये उस वेले मरने वाला तो सवाल ही भुल जाओ ना, जिहड़े वेले अपनी ताकत और अपनी हैसीयत और अपना भार विखाना होंदा इन्हां ने अपनी हैसीयत के मुताबिक, उस वेले जरदारी जिहड़ा वो बुक्कल मार के बह जाता है पिछा होके, आंदा मैं सिंध। ਉਹਦੇ पुत्र ने जिदन अखीर नारा लाया सी बिलावल ने, उस यही आख्या सी ना मरसू मरसू सिंध न देसू। जे पाकिस्तान ते उदां दी नज़र हुंदी या पाकिस्तान जिन्ना उन्हां दा विजन हुंदा तो फिर उदन आंदा कि मरसू मरसू ते पाकिस्तान ना देसू। ਇਹਦਾ मतलब है कि जदों उन्होंने बैक फुट ते जाना तो फिर सिंध ही है। ये उन्होंने आखिरी आदत है जिहड़ी है कि ये तो फिर असीं जाहिर है कि उत्थे फिर वो सिंधु देश वाली भी गल आ जानी है, फिर सिंधीइज़म की भी आ जानी है,
फिर वो बलोच भी नाल रलने ने, जिन्नी उन्होंने नैटवर्किंग उन्हें सारा अपना किरदार अदा करना। लेकिन आ धा के मुकाम से उन्होंने पैरों थले सिंध ये जोड़े सन नवाज शरीफ हरी इन्हें यह समझे असी कि असा 30-40 साल कढ़ लेने, भावें जोड़ा भी साडा लुहारा तरखाना सी, लेकिन हुण पंजाब के मालक असीं आए, इस गल च इन्हां दी बोले। पंजाब दियां कौमां जिहड़ियां जिहड़ियां हैं वो सारियां साहिब हैसियत ने, कोई नहीं देंदियां, अगले नूं कख भी नहीं समझदियां। वो है एक उहदे च भी एक जाती वाक़या है, लेकिन वो कदी फिर सही। लेकिन पंजाब दे विच जितनियां कौमां बैठियां ने वो सारियां इंज भज के ते सिर मत्थे ते नहीं रखन लगियां। लेकिन ये जदों जफ्फा मारते ने या जिथे टप्पा मारते ने इदों अगे अगे वो फिर आंदे ने चलो पंजाब साडा हो गया लाहौर के तख्ते लाहौर की वजह तो इमरान खान जिवें हुण जाके उत्थे सियासी पनाह लई है अपना खैबर पख्तूनख्वा तो वह पठाणा वाला तो जिहड़ा उन्हां दे होर भी कई इहो जिहे मसाइल हैं, वो अपनी फैज़याबी उत्थों करना चाहता फैज़ की वजह तो भी तो वैसे भी। चुनाचे वो 3 धड़े उन्हें बना के ते 10 दिते, विचों बलोचिस्तान का ना ही पी गया। गिलगित बल्तिस्तान भी उन्होंने ज़हन च नहीं आया भी वो किहड़े खाते च आएगा। सरायकी वालियां दी पिछली कोई 20-30 साल की 40 साल की जिहड़ी उन्हां दी जद्दोजहद भी है, और वैसे भी उन्हां नाल बहुत पता लगता कि वो तो बिल्कुल नक्को नक तंग आए हैं। और फिर 3 दी की फिर अगों जिहड़े सिंध वाले ने वो अर्बन सिंध कराची वाले जिहड़े ने MQM जाते जाते भी उन्होंने बड़ा क्रश किया, लेकिन जिस वे कुत्ते कुत्ती मच जानी उस वे किसी ने की छड़ना। लिहाजा ये जिहड़ी उन्हें गल की है वो इस वास्ते की, मगर ये मैं गल पिछा टोर के ले जाऊँ चक्की वाली गल ते कि जिस दिन इकतदार ते ताकतां ते फौज ते एटम बंबां ते सियासत ते वजीर आजमियां ते वजारत दाखला ते ओहदियां ते ब्यूरोक्रेसी की बंदर बांट ते ये सारा कुछ तो इन्हों अखां नाल सामने दिसदा रहा। लेकिन बहरान की क्लाइमैक्स उदों पैदा होया जदों पैसे मुक्के ने। मईशत और मुआशी बहरान ने जिन्हें अखीर ते जाके यह सारियां गल्लां इन्हां दे मूँह कढवाइयां ने। हुण भी ये एडे सच्चे या एडे चंगे कोई नहीं कि सारियां सच्चियां पर दसन लग पे कौम। पैसे गए ही मुख ने, अगलों ना उधार कोई देंदा ने, ना उन्होंने कोई यानी वकार बचया पिछे। हुण वो आंदे ने अगे उन्होंने वो चाहिए ने जिहड़े उन्हां वास्ते जाके पैसे मंग के लियाउण, जिन्हां ने पैसे देने ने वो आंदे ने सानूं फलाना फलाना निज़ाम सीधा चाहिए। वो बहरहाल किसी ना किसी तरह पब्लिक राइट्स के पब्लिक के मूँह च मुर्गी पाने वास्ते गल जाके गल करते ना बेसिकली। लेकिन हालत ये हुई है कि वो जिहड़े सन 70 तो बाद जिन्होंने आख्या गया कि तुसी वोट नहीं कास्ट करना, जिन्होंने आख्या गया कि तुसी इत्थे दे वासी नहीं हो, जिन्होंने आख्या गया कि तुसी यानी हुण जलसे वेखो खुदा दा खौफ होंदा तो बड़ी गल सी, है ही कोई नहीं। धरने दे के पब्लिक रस्ते बंद करना, और पब्लिक रस्ते भी की जिहड़ी सेंटर ऑफ इकतदार है गढ़ जिहड़ा उन्होंने जाके डी चौक के जरिए बिल्कुल पैक करके बंद कर देना, वो जिहड़ा वो जलसियां की इजाजत है। उन्होंने उत्ते सुप्रीम कोर्ट जिहड़ी रोज़ाना फैसले देंदी राती 10-11 बजे 12 बजे उठ के। तो जिहड़ा राइट ऑफ असैंबली अहमदियां दा राइट सी, जिहड़ा हर साल जलसा सालाना हुंदा सी, जिहड़ा जिहदी घट तो घट हुण 100 साल तो उत्ते दी तारीख जिहड़ी है वो डॉक्यूमेंटेड हिस्टरी बन चुकी है। और पाकिस्तान दे विच अनब्रोकन हर साल जलसा सालाना हुंदा सी, जिहदे च अहमदी हुंदे सन, इकट्ठे हुंदे सन, गल करदे सन, 2-3 दिन उन्हां दी गेट टूगैदर सी। उस जलसे की इजाजत 4 दीवारी के अंदर खरीदी हुई जगह के उत्ते इजाजत नहीं दी जा रही। किस वास्ते दसो तो सही। वो हकूक का खिलवाड़ करद्या करद्या जिहड़ी उहदी अखीर मार वगनी सी तुहानूं वो मुआशियात के उत्ते आके पैनी सी। और अल्लाह ताला ने की कीता कि घरों बेघर करके वो जगह तो नौकरियां तो जवाब कारोबारां दे नाल मतलब जे हुण भी वो शजान का जूस पी लवे तो मौत वाक़या हो जाती बंदे दी।
मौलवी के सामने शैतान का झूठ तुस फड़िया हो समझो निरी मौत है तुहाडे वास्ते। लेकिन उन्हां दी जिस चीज़ के उत्ते जाके तुहाडी तबाही होनी सी मईशत के उत्ते और मुआशियात के उत्ते, वही चीज़ उन्हां दी सब तो ज़्यादा अल्लाह ताला ने मजबूत रखी। वो तो फिर अपने तरीके ने, वो जिमें चक्की के जिन्हें आटा प्यान होना उन्हें काट के उत्ते देनी देनी, वो तो पूरा यूनीवर्सल रूल है। लिहाजा उस ड्रम चो कोई नहीं मुकने। इस तरह जिहड़ा इन्हां दा सिस्टमैटिक निज़ाम सी, फिर इन्हां दा चंदे दे उत्ते बाकायदगी सी, फिर हर बंदे दे अंदर कुर्बानी दी रूह सी, फिर उस दे बाद उस जगह तू छड्ड के अगां जाके पैर लाने ने तो कुछ तो उन्हें करना ही है ना बंदे ने। जेड़े वेले उन्हें करना है उन्हें ओदी वर्थ और हैसीयत भी ज़्यादा हो जानी। मैं अपने किसी साफी दोस्त नूं कहंदा सा, मैं कि उत्थे मेरा जदों इस्लामाबाद 25 तो 30 हज़ार घर का मेरा किराया हुंदा सी ते ओह देना औखा हुंदा सी, ते इत्थे जिहड़ा वो 2-2.5-3 लाख रुपया बन जाता किराया, लेकिन वह भी दिप जाता अगर उत्थे दे हिसाब च वेख्या जाए तो। लेकिन वजह यही है कि जिस वेले तुसीं एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो जिहड़ा सिस्टम मजमूई तौर पर और इजतमाही तौर पर तुहानूं अगे लैके जा रहा, तो तुहाडा जिहड़ा काट वाला ड्रम है वह किस तरह खाली हो सकता। हुण मैं कई दफ़ा देखा कि अल्लाह ताला रहम करे और माफ़ करे कि अहमदी घरानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई हाल जाइए तो एक मुख्तलिफ साइज़ का उन्होंने एक साइड तो छोटा जिहा इत्थे तुहानूं क्लाइन गेट आंदे ने रेसगारी वाला, वो उन्होंने अपना अपना डब्बा उन्होंने रखा होंगे जिहड़ा भर के सिर्फ इस वास्ते रख देंगे ने कि यानी ये जदों खाली होवे उत्थे किसी भी मुस्तहिक नूं भिजवा दिते जाण, अदर दैन अपने ज़ाती अजीज़ां तो इलावा अपनी जी ज़ाती जिम्मेदारियां फैमिलियां ने वो तो सपोर्ट करनियां ने। ये फिर भी एक सो एक काट के छोटे छोटे ड्रम अपने हर घर दे विच मौजूद ने। तो जिस जगह ते जाके खुदा ताला दी हिकमत और उन्होंने पता सी कि तुहाडा यानी हुण खुदा पैसे ही मुक जाण तो उत्थे एटम बम की करे, और पैसे जिन्हां पॉलिसियां के नतीजे सस्टेनेबिलिटी आउंदी है, इस्तेहकाम आउंदा, वो पॉलिसियां जिन्हों ने सारी उम्र कमीशन खादा उन्होंने तुहानूं दोबारा कित्थों जाके ते वो पॉलिसियां देनियां ने। मैं तो नहीं, मुन्नू भाई आंदे ने कि चीफ एहतसाब कमिश्नर साहब बहादर वाली नज़म दे विच कि जे ये सारियां गल्लां इन्हां नूं पुछदे हो, जे पुछदे हो तो किंज दस्सण दे, जिंज वसदे ने किंज वसणगे। अगर ये बंदे दे पुत्र बन जाण, इन्हां च इंसानियत वापस आ जाए, इन्हां दे विच दयानत वापस आ जाए, तो जेड़े इन्हां दा लाइफ स्टाइल है या जिवें करके रह रहे हैं, जिहड़ियां बेईमानियां की बुनियाद के उत्ते इन्होंने अपना इकतदार कायम किया है, वो किवें कायम रह सकेगा। अहमदियां की जिहड़ी हैसीयत है वो इन्हां दी लोकां दी हक तलफी और बददियानती और बेईमानी के उत्ते नहीं है बुनियाद, उन्हां दी ज़ाती कुर्बानी के उत्ते उहदी बुनियाद है। और ज़ाती कुर्बानी वाला जिहड़ा तुहाडे कोल नेमत है वो कोई वापस लै ही नहीं सकता। और ज़ाती कुर्बानी के उत्ते मुआशरा ट्यून तां हुंदा है जदों एंड रिजल्ट के सामने जिहड़ी आखिरी तुहाडी लीडरशिप है उहदे उत्ते तुहानूं गैर मशरूत यकीन और एतमाद होवे। उस सिवाय खिलाफत अहमदिया के जिस तरह खिलाफत के उत्ते अहमदिया के आम आदमी नूं एतमाद है, उस तरह तो असीं लभ के विखाओ तुहाडे च किहड़े बंदे दे मतलब किदे मूँह की गल दा पता होवे तो पता होवे बंदा आखे भी झूठ नहीं मारिया होना या बेईमानी नहीं की होनी। जदों इस हद तक मुआशरा होंदा उदों फिर वो जिहड़े काट वाले ड्रम वाले ने उन्हां दा ते जाना कुछ नहीं, उत्थे ते आटा कोई नहीं मुकना। लेकिन वो है कौन ने जिन्हां दे पिछों परवरदगान और जिन्हां दे ध्यान रखण वालियां ने अपनी ज़ाती फरासत नूं तज के खुदा ताला दे फजलों के उत्ते तवक्कल कीता और उन्होंने आख्या कि अल्लाह इन्होंने आटा ही इन्हों दे छड़ी, ये जिन्ना मर्जी गुनन मुक्के ना इन्हों को। अल्लाह ताला हमसाएगी ये और दूजियां तो भी फजल फरमाए और उन्होंने भी वो दिस पवे कि जुल्म करदियां करदियां हर शोभा नंगा हो रहा हुण तुहाडा, और किसी थां ते हुण रुक के तो एक बार ठंडे होकर वेख लो। लेकिन जे नहीं वेखना, मैं तो पिछले खुतबे दे विच सुनिया सी कि वो इमाम जमात अहमदिया ने इन्होंने फरमाया सख्त बदतीनत लोग हो चुके हैं, अल्लाह ताला इनकी पकड़ करे। यह पहली दफ़ा है कि जदों सीधा सीधा मैं पकड़ दे अल्फाज सुने,
नहीं तो फिर भी मूँह निकल ही जाता कि अल्लाह ताला इन्हें रहम करे या इन्होंने बचाए या हिदायत दे। इस दफ़ा तो मतलब वो अल्लाह का तसर्रुफ है या जो भी है। बहरहाल अलीम साहब का एक शेर है कि लोग मौजूद हैं अब भी जिनके मुँह से जो बात निकल जाए अदब, तो इस्तग़फ़ार ही किया, डर गए कि अच्छा इस बेख्तियारी नाल अगर यही अल्फाज निकले ने तो अल्लाह ताला रहम करे। लेकिन बहरहाल बाइबल दे विच भी है वे कि कमज़ोरां नूं बिशारत होवे कि वो कमज़ोर सन लेकिन ज़मीन दे वारिस बनाए जाएंगे। इस तरह जेड़े नॉन प्रोफैशनल ते दुनिया की नज़र च बिल्कुल अपने हकूक की हिफाजत ना कर सकन दी इस्तात ही ना रखने वाला जिहड़ा तबका है, उन्होंने बिशारत होवे कि उन्होंने दे ड्रम चो आटा नहीं मुकन लगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह ताला दी अमान। अस्सलाम वालेकुम।